So dear, all of you have seen this sign convention, all, sine, tan, cos. Fine, angle moves like this way, anti-clockwise. So we know the location where these 6 ratios are positive and negative, correct? Now we will move to more than 90 degree. We have seen 0 degree, 30 degree, 45, 60, 90 value of all 6 ratios. Now we will move to more than 90 degree. So for this, we have one formula, you can say a shortcut method that you have to remember. See, n pi by 2 plus minus theta I have written. This is A type. Pi by 2, all of you know, 90 degree. So pi by 2 is 90 degree, or you can write n into 90 degree plus minus theta. This form. Here, first, n is odd. N should be odd. Means pi by 2, 90 degree is odd multiple of 90 degree. So n should be odd. Then second is, in such type, n 90 plus minus theta or n pi by 2 plus minus theta case, sine changes to cos to sine, that we have seen in sine 90 minus theta, cos 90 minus theta format. Fine. Tan changes to cot and cot changes to tan. Sec changes to cosec and cosec changes to sec. Fine. Now actually whatever I am going to tell you, the value more than 90, how we will calculate. For this, these are some tips that you have to remember. And finally, we have to see the location of that angle. Let's say we have 210 degree. So 210 degree will go where? In third quadrant. Fine. And third quadrant, what happens? Wait, light चली गई है dear. पर्दा हटाइए और हटाइए. Yes. So in third quadrant, what happens? In third quadrant, tan is positive and cot is positive, rest all are negative. So then finally we will see the location where angle is lying. So this way we can calculate any degree, but that has to be n multiple, odd multiple of 90. We have another method also. First we'll understand this method. So let's say we'll start with one situation. Sine, let's say 210 degree, correct? Or we take, let's say, some small degree, 150 degree. Sine 150 degree. So what we'll do, sine 90 plus 60 we can write. Odd multiple of 90, 1 is odd, 1 into 90. So in this case what happens, sine changes to cos. See, I have written here plus or minus both. Fine, plus or minus both. And n is odd. So 1 is odd, so sine changes to where? Cos 60. Fine here. This theta will come, and cos 60 is no 1 by 2. Fine. Now we have to see this 150 degree where it is lying in the quadrant system. So 150, this is 90 plus something, it will fall in where? Second quadrant. And in second quadrant, see this one rather than this. Don't see cos. See this sine, because operation sine का हो रहा है. Sine 150 degree चाहिए अपने. तो sine यहाँ second quadrant पे क्या होती है? Positive. So this value is positive. So sine 150 is 1 by 2 and it is positive. Also we know sine is positive in second quadrant. Correct? तो हमने sine 150 ऐसे निकाला. थोड़े बड़े वैल्यू पे हम आते हैं. तो ये फॉर्मेट है. n 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, प्लस हो या माइनस हो. n क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए. और चेंजेस क्या होते हैं? यू नो, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, सेक कॉसेक कॉसेक सेक. एंड फाइनली वी हैव टू सी द एंगल वेयर इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइंग. करेक्ट? चलिए आइए कुछ इसमें बड़े प्रॉब्लम्स देखते हैं. लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट tan 300 degree. Fine, tan 300 degree चाहिए. So how we will go? Tan 300 डिग्री को 90 का मल्टीपल बनाइए, ऑड मल्टीपल. तो 3 इंटू पाई बाई 2 और 90 यू कैन से, एंड प्लस 30 डिग्री. सो यू विल रिच 300 डिग्री. सी, ये जो थीटा वाला पार्ट है, वो आपके नोन वैल्यू में होने चाहिए. 0, 30, 45, 60. ठीक है? 90 तो होगा नहीं, क्योंकि 90 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 90 नहीं आएगी. 90 से इसको डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 30 मिली. 30 है यहाँ पे. तो 3 इंटू एंड 3 इज ऑड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
So odd multiple of pi by 2 plus 30. Now what happens? Tan changes to cot. So this becomes cot 30. And you know the value of cot 30. Tan 30 1 by root 3. Cot 30 root 3. Fine. Now we will see where this angle is lying. In which quadrant? So 3 pi by 2. 1, 2, 3. Plus something 30. So it will fall in fourth पे आएगा. ठीक है ना? 3 pi by 2. 1, 2, 3 plus something. It will fall in where? Fourth quadrant. And fourth quadrant पे tan क्या होता है dear? Negative. Don't see cot. See the tan. जिसकी value चाहिए. So tan in this quadrant it is negative. So minus root 3 is the value of tan 300 degree. Correct? तो ये odd multiple का केस आप अच्छे समझेंगे. 90 से जब भी डिवाइड करना है, we want always odd multiple. Correct? Look at this. इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप A लिखा है. We have one more type. वो 180 मेथड करेंगे. Let's say we have to calculate sin 600 डिग्री. ठीक है? sin 600 डिग्री चाहिए. तो sin 600 90 से आप डिवाइड करो इसको. तो 90 600 के पास पहुंचोगे तो ऑड मल्टीपल. तो 90 इंटू 7 ले लें आप, दैट इज 630 और माइनस कर लीजिए 30 डिग्री. नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है? क्योंकि मुझे ऑड चाहिए. 19 6 जा नहीं करेंगे आप. वो 540 प्लस 60 दैट इज रॉन्ग. 97 जाओ और माइनस 30 करो. ठीक है? सो देन व्हाट विल हैपन? साइन चेंजेस टू वेयर? cos 30 डिग्री. ठीक है? साइन 90, साइन चेंजेस टू cos 30 वी नो रूट 3 by 2. फाइन. अब ये देखेंगे ये एंगल कहाँ लोकेट हो रही है. ये 600 डिग्री. ये 7 पाई बाई 2. 1 2 3 4 5 6 7 माइनस समथिंग, यानी इस पे ही आएगा. 7 यहाँ पहुंचे माइनस समथिंग, तो इट विल लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट. इन थर्ड पे साइन क्या होता है? नेगेटिव होती है. ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, माइनस रूट 3 by 2. ठीक है? सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट मोर देन 90 डिग्री वैल्यू देयर. ठीक है? आई बिलीव ये आप लोग को समझ में आया. अच्छे से समझ के रखें. ये वैल्यूज, बड़े वैल्यूज भी एक सीडीएस के अंदर रहते हैं क्वेश्चन निकालने के. बड़े से बड़े वैल्यू ले सकते हैं. लेट्स से मैंने एक वैल्यू ले लिया. लुक एट दिस. cos 1380 डिग्री. ठीक है? cos 1380 डिग्री. सो डियर 90 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो cos और ऑड मल्टीपल 90 का ऑड मल्टीपल, तो 90 इंटू 15 हो जाएगा 1350 एंड प्लस व्हाट लेफ्ट 30 डिग्री. ठीक है? सी मल्टीप्लाई यू विल गेट 1380 एंड यू ऐड 30. cos चेंजेस टू वेयर? sin 30. थीटा आ जाता है ये. ठीक है? अब हम लोकेशन देखते हैं. 15 पाई बाई 2. सो ये 4 तो यहां तक होगा, 4 यहां तक, 8 यहां तक, 12 यहां तक, फिर देन 13 14 एंड 15 प्लस समथिंग प्लस, इट विल फॉल इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ पे कॉस क्या होता है? पॉजिटिव. सो ये पॉजिटिव ही होगी एंड विच इज 1 by 2. सो cos 1380 डिग्री इज पॉजिटिव 1 by 2. बड़े से बड़े वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 90 से डिवाइड कीजिए, ऑड मल्टीपल बनाइए. करेक्ट? एंड फाइनली उस एंगल का, ये एंगल कहां पे फॉल कर रही है क्वाड्रेंट देखिए एंड देन यू कैन गेट द करेक्ट आंसर. अब इसमें हमें 1380 फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है. कॉस की वैल्यू चाहिए थी तो कॉस यहाँ पॉजिटिव होती है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया. साइन नहीं देखना है, ये देखना है जिसका ऑपरेशन हो रहा है. कॉस का हो रहा है ना, कॉस की वैल्यू चाहिए. फाइंड इट. सो इट कैन बी प्लस और माइनस बोथ. प्लस और माइनस दोनों के लिए रिजल्ट थी. हाँ, n पाई बाई 2 plus minus theta. This is type A. You have seen where n should be odd, correct? And sine changes to cos, cos sine, tan cot, cot tan, sec cosec, cosec sec. And finally you have to see the location where exactly angle is lying. ठीक है? कहाँ पे angle fall कर रही है. Correct? So all of you have seen this multiple of odd multiple.
अब मैं एक अलाइंड एंगल की बात कर रहा हूँ, अलाइंड एंगल जो हमें एंगल मूव करने लगा क्लॉकवाइज। तो ये क्या होता है डियर, जब एंगल मूव करती है क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो नेगेटिव हो जाती है, बट ये ज्यादा देर तक नहीं नेगेटिव होती है, ऐसे नहीं चलती है, ये वापस पीछे आती है और फिर पॉजिटिव चलना स्टार्ट होती है। वो कैसे, लुक एट दिस, साइन माइनस थीटा, दैट मीन्स ये माइनस नीचे चलने लगी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होता है, इसको माइनस बाहर निकाल के साइन थीटा, यानी माइनस इन्हें यहाँ पेनल्टी देना पड़ता है और ये फिर वापस यहाँ पे थीटा को प्रेस की जाती है और फिर थीटा साइन चलने लगती है। तो ये क्या हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, जैसे हमें लेट्स से वैल्यू चाहिए साइन माइनस 60 डिग्री, ठीक है, तो साइन माइनस 60 तो यहाँ पे आएगी, ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन, तो पहले आप माइनस साइन 60 कर लें, क्योंकि साइन माइनस थीटा आई टोल्ड यू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60, दैट मीन्स ये एंगल जो है ये माइनस 60 अब यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ से ये 60 जो चलेगी तो वो साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो दैट ऑल ऑफ यू नो साइन 60 इज पॉजिटिव √3/2, पॉजिटिव, बट ये माइनस के कारण से ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस √3/2। सो ये रिजल्ट हमारा साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस में जब हम आते हैं, कॉस माइनस थीटा, तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा होता है बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस और सेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये फोर्थ पे आया, एंगल क्लॉकवाइज मूव करी, तो ये फोर्थ पे आया तो कॉस जो है उस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर कॉस थीटा बनेगा और फिर ये एंगल इधर से स्टार्ट हो जाएगी।